کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. علی بھائی، کتنے ملحدین کو اور کتنے کفار کو آپ نے آج تک مسلمان کیا؟ الحمدللہ سینکڑوں قادیانی، سینکڑوں نان مسلم، بلکہ تھاؤزنڈز میں ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، مجھے ای میلز بھیجتے ہیں یا ملاقات کر کے جاتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ ثواب آخرت کے لیے باقی رکھنا ہے، میں پبلک کے سامنے آ کے انہیں پروڈیوس نہیں کرتا. ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے؟ نہیں ریکارڈ کیا. یہاں پہ ایک ہندو ڈاکٹر آئے تھے، ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ کتنے 750 لوگ مسلمان ہوئے. ہاں، اور وہ ہندو سے مسلمان ہو کے انہیں وہ بات سمجھ آئی ہے. آپ کے پاس آ کے کتنے لوگ ہندو سے مسلمان ہو کے انہیں وہ بات سمجھ آئی ہے جو ہمارے علماء کو نہیں آتی. انہوں نے اپنے فرقے کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا، ان کا مسلمان ہے. انہوں نے مسجد پہ کسی فرقے کا نام ہی نہیں رکھا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم انجینئر صاحب سے متاثر ہوئے ہیں. ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے، حالانکہ میں نے نہیں وہ ریکارڈ کی، انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے کی ہے. تو الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں لوگ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن؟ محمد سلیم. محمد سلیم بھائی کہاں سے؟ سکھر. سکھر؟ جی جی، شکارپور سائڈ میں. سندھ؟ جی جی. سندھی ہیں پنجابی ہیں؟ سندھی. سندھی ہیں. ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. اکیلے آئے ہیں؟ اکیلے. اکیلے؟ جی جی. اسپیشل ملنا تھا، کوئی کام تھا؟ بالکل اسپیشلی ملنے آیا ہوں انجینئر صاحب سے. میں کیونکہ نان مسلمان تھا، کنورٹ ہوا ہوں ابھی انجینئر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا، نان مسلم تھے؟ جی جی. کنورٹ کیسے ہو گئے؟ ہمیں کون سے مذہب سے آپ کا تعلق تھا اگر آپ بتانا چاہیں؟ ہندوازم سے. ہندوازم سے؟ کیسے بدلے؟ الحمدللہ پہلے ہم اسٹڈی کرتے تھے، بہت زیادہ ہم نے اسٹڈی کی اسلام کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں، جیسے انجینئر صاحب کرتے ہیں ایسے ہمیں بھی بہت شوق تھا. خود تحقیق کے میدان میں تھے؟ میں خود ہی اکیلا ہی تحقیق. کوئی جبر نہیں، کوئی کچھ نہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے دعوت دی، گھر میں دعوت دی. نہیں، آپ کو اسلام پہ لے کے آنے میں کس کا کردار تھا؟ سچ بتاؤں، سچ بتانا ہے. سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب آپ کو موٹیویشن ملتی ہے نا، اسلام کی حقانیت یا سچائی کہیں سے نظر آتی ہے نا. یا تو آپ نے قرآن پاک پڑھا، وہ بھی آپ کو کسی نے دیا، کسی نے ریفرنس دیا کہ آپ ادھر جائیں. ہمیں کسی نے نہیں دیا، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے قرآن پاک کو. ہم نے کسی دوست کے تھرو لے کے اسٹڈی کی، حدیثوں کی کتابیں لے کر اسٹڈی کی. پھر نیٹ کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے. اسی دوران دنیا کے بہت بڑے بڑے عالموں کو ہم نے سنا، سارے تقریباً سن چکے ہیں. سن رہے تھے؟ بالکل سن رہے تھے. ٹھیک ہے. اہل حدیث کے سنے، بریلوی، دیوبندی، اہل شیعہ. نہیں، تب تک اسلام قبول کر لیا تھا یا ابھی تحقیق چل رہی تھی؟ ابھی تحقیقات چل رہی. ٹھیک ہو گیا. جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں نے سنا. کیسے آئے سامنے؟ کیسے آئے؟ کس نے بتایا؟ میں نے خود ہی نیٹ پہ. اچھا. عالم میں ایکسپوز کر رہے تھے، اس دوران مجھے میری ملاقات مطلب انجینئر صاحب سے ہوئی انٹرنیٹ پہ سن 2014 میں. ٹھیک ہے. تب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر آہستہ 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 جب مجھے مزہ آتا گیا، انجینئر صاحب کو سنتے گئے ایسا مزہ آ گیا. الحمدللہ ہم نے اپنے گھر والے میں دعوت دی، گھر والوں کو بھی دعوت دی، اور اپنے قبیلے میں بھی دعوت، باقاعدہ دعوت بھی دی. میری کلینک ہے وہاں پہ میرے علاقے میں، میں پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر. ماشاء اللہ تو میں نے دعوت دی، فیملی میں دعوت دی، ابو والوں کو، امی والوں کو. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دعوت اسلام حق ہے. یہ جو ہم بت پرستی کرے یہ ہے ہی نہیں کچھ، خود بنا رہے، خود اس کی عبادت کرے، یہ تو کوئی دین دھرم ہی نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت کا جو ذکر ہے صرف قرآن میں آ رہا ہے، اور توحید جو اسلام بیان کر رہا ہے دنیا کا کوئی کتاب نہیں بیان کر رہا ہے. اسی لیے پھر میں نے انجینئر صاحب کے کچھ کلپس تھے ان کو سنوائے. ان کو تو سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی تھی، وہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت زیادہ سنتے تھے. پھر آہستہ آہستہ دعوت دی میں نے. جب دعوت دی تو الحمدللہ میرا، ابھی میں مسلمان ہوا بھی نہیں تھا، میں نے اپنے بچے مدرسے میں بھیجنا شروع کر دیا. الحمدللہ میرا دوست تھا پہچاننے والا، اس کے تھرو ہم نے بھیجے تھے. جب ہم نے سن 2019 میں اعلانیہ میں نے، میری فیملی نے اعلانیہ اسلام قبول کیا. 87 پیپلس، ماشاء اللہ تعالیٰ 87 پیپلز نے اکٹھے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. جی. اور یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر آپ دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ کیا آپ کو اسلام کے قریب لے کے آنے میں کس کا کردار ہے؟ سب سے زیادہ انجینئر صاحب. یہ حلفن کہہ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ اکیڈمی میں آیا ہمیں خوش کر رہے ہیں؟ میں انہیں خوشی کی بات کی. اچھا. ابھی میں وہاں سے اکیلا یہاں پہ آیا ہوں. اچھا، آپ غیر مذہب تھے، غیر مسلم تھے، آپ کا ایکسپیرینس تو ہوگا یعنی کفر کی زندگی کے. جب آپ اسلام کی طرف آئے، آپ نے تحقیق شروع کی، بہت سارے عالم دین کو سنا، آپ نے اسلام کے مکاتب فکر بھی دیکھے کہ یہاں پہ تو فرقے کی بنیاد پہ بھی لسانیت چل رہی ہے اور کیا کیا چل رہا ہے. آپ نے کیا دیکھا
जो इस्लाम असल इस्लाम है, जो रसूलुल्लाह का दीन है, जो अल्लाह ने कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, इस तरह का इस्लाम कौन बयान करता है? तहकीक तो आपने की ना? तहकीकात मैंने की। हाँ और जब हमने इस्लाम कबूल किया बाकायदा हर फिरके के लोग हमारे पास आए। हाँ पहले तो कोई भी नहीं आ रहा था। सही है। हम खुद जा के बोल रहे थे हमारे पास आओ, दावत दो। हमें बताओ। हाँ, सही है। पहले कोई भी नहीं आ रहा था। जब हमने एलानिया किया, मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया के अंदर आ गया, तो फिर हमारे यहाँ सारे आ गए माशाल्लाह, सारे हमारे मेहमान बन के शामिल हो गए। फिर हमने डिस्कस की, इस्लाम लाने से पहले, कबूल करने से पहले हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी भाई हम किसी फ़िरके में नहीं जाएंगे, क्योंकि फ़िरका इस वक्त हर कोई पार्टीबाजी वाला सिस्टम हाँ, हाँ, हम हाँ, नहीं हाँ, जाएंगे। अल्लाह अकबर। हाँ, तो फिर अबू ने बोला जैसा आपको समझ में आता है। मैंने कहा कुरान है, हदीस है, जो हमें कुरान और हदीस के रेफरेंस देंगे हम उसके बात मानेंगे, जो नहीं देगा हम उसकी बात नहीं मानेंगे। हाँ हाँ हाँ। उसने कहा बेटा ठीक है। फिर तो भाई हमें मस्जिद की ऑफरें, पता नहीं किस किस चीज़ की ऑफरें देने लगे। अच्छा, कौन कौन? ये फिर क्या वाले? हाँ ये सारे, हाँ, हाँ, ये हाँ। सारे। फिर हमने मस्जिद बनवाई, हमें किसी ने मस्जिद बनवा के दी। ठीक है। और उसने बोला कि भाई आप जैसा आप चाहे करें, लेकिन बाद में उसने हमसे दुगला पॉलिसी खेली है। फिर उन्होंने अपने फिरके का लोगो वहाँ पे लगा दिया। क्या कौन सा फिरका था? ये देवबंद। सीधे बनते। ठीक है। हाँ, तो मैं रफ़े देने अकेला करता था हाँ। और कोई रफ़े दे नहीं करता था। फिर मैंने उनको दावत दी अपने इलाके में जो थे। अभी माशाल्लाह 100 से ज़्यादा रफ़े देने मेरे इलाके में माशाल्लाह ताला। और अभी तक सन 2025 के अंदर तक मुसलमानों की तादाद 560-70 पे पहुंच गई है, जो हमारे इलाके में अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दावत से? जी जी आप। और ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई जबर नहीं है? कोई जबर नहीं किसी तरह का। पाकिस्तान में आपको कोई जबर नहीं नजर आ कोई रहा? जबर नहीं, कोई माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला। बाहर की एजेंसियां भी आती है, कंफर्म वेरिफिकेशन भी करके चली जाती है, अल्लाह। कोई जबर नहीं है। लेकिन रही बात रफ़े दिन पे, तो हमें बहुत सताया गया है। हाँ, बहुत ये तो सुनना ज़्यादा, पड़ेगा। ये इतना बहुत ज़्यादा। अभी तक मैं भी यहाँ पे आया हूँ ना, तो अभी मुझे बोल रहे हैं कि भाई वो मिर्ज़े के पास गया ना, मिर्ज़े के पास गया। देखिए, आपने तो कुफर को देखा है ना बड़े पास से, जी, जी। आपने तो उसके मामलात देखे हैं। आपको मुसलमानों में भी इस तरह के लोग नजर आएंगे, ये जो आप बता रहे हैं, ये इस तरह के लोग ही हैं। मैं आपको बताऊं, हम इनको कुफा काफिर तो नहीं कहते, लेकिन इनकी हरकत इस तरह की हरकत है। है। हाँ, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल मुसलमान होना अपने लिए, तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। क्योंकि अगर आप उस कुफर से निकल के इधर भी किसी फिरके में जाते तो वो भी किसी काम हाँ, वो किसी काम का नहीं था। हाँ, तो ये हमारी तरफ से आपको बड़ी मुबारक है जी। अल्लाह ताला ने आपको हदायत का रास्ता दिखा दिया, और आपने भी, आपकी भी मेहनत है, आपने देखा, और अल्लाह ताला आपको इस पर इस्तकामत दे। और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? आज आपने इंजीनियर साहब को लाइव देख लिया, लाइव सुन लिया। ये वही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं बकौल आपके, कि जो आपको इस्लाम लाने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में अहमियत और कदर है। तो कैसा रहा आज? ये कहते हैं, उलमा कहते हैं जी ये बड़ा मुतकब्बर इंसान है, वो कहते हैं ये बाइज़्ज़त नहीं करता, ये गुस्ताख भी है। कैसा है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सुना था वैसा पाया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे होके गुजर गए हैं, उन्होंने जो तारीफ़ की थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मैंने दुगना पाया। और ऐसे रहमदुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा ख्याल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि होना भी ऐसा चाहिए। हमारे तरफ जो इलाकों में आलिम में इतनी दारियाँ रखी हुई है, वो हमें बहुत तंग करते हैं, अभी भी तंग करते हैं। ये छोड़ दो, रफ़े दिन छोड़ दो, रफ़े दिन छोड़ दो। क्यों? अल्लाह अकबर। भाई क्यों छोड़ दें? अल्लाह के रसूल की सुन्नत हम क्यों छोड़ दें? अस्तगफिरुल्लाह। जब हमने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था आप कहाँ थे? जब हमने कबूल किया आप आ गए, मेहरबानी आपकी। चले, मुलाकात की है? जी जी मुलाकात। मिल के आए हैं अंदर से? बताया भी है उनको, अपना तारुफ करवाया? ये नहीं तो करवाना था ना? अभी करवाएंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास भाई, कहाँ से? मैं सिंध शिकारपुर से। सिंध से? माशाल्लाह, शिकारपुर से। जी। कितने दोस्त आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अकेला ही आया हूँ। अकेला? जी। इसी काम के लिए आए हैं, कोई और काम था? नहीं, मैं गुजरांवाले में काम करता हूँ उधर होटल पे, तो मैंने सोचा संडे कल मिल के आऊँ अली भाई। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? अली भाई को अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से हम इस्लाम कबूल हुआ है, सुनको उनको। इनकी वजह से इस्लाम कबूल हुआ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सुना देखा। अच्छा, नहीं इससे पहले कौन सा मजहब था? इससे पहले हम हिंदू बिरादरी थी। आप हिंदू थे? जी, राजपूत हिंदू। राजपूत हिंदू, यानी सिंध में हिंदू कम्युनिटी तो आपकी काफ़ी सारी है। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब भी आए थे सिंध से, जी जी। वो भी एक हिंदू डॉक्टर थे, तो जी, जी। उन्होंने कहा, मेरे साथ बात की, तो उन्होंने बताया कि 572 बंदे जो है ना अभी तक पूरे कबीला हमारा इस्लाम लेके आया है, और उन्होंने बताया कि इंजीनियर साहब को सुना था। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड हिंदूइज़्म से तल्लक, जी। क्या
क्या लगा इस्लाम में आने की, क्या वजह बनी? इस्लाम में आने की यही वजह थी, तो जो कुरान भी सुनते थे तो जो सच्चा दीन हो इस्लाम भी है, इस्लाम के अलावा कोई और सब दीन झूठे हैं, एक इस्लाम ही वाहिद सच्चा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तो अभी आप कह रहे हैं, जब आप हिंदुइज्म में थे जी जी ये तब भी आपको फील होता था? जी, तब भी हमें फील होता था कि यानी कि कमी होती थी कि हमें मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है जी, इस वजह से कि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी मुसलमानों की ज़्यादा तादाद थी, ये वजह थी, या आप अपने उन अकायद में जो हिंदुइज्म में है उससे आपको आपका ज़हन मुतमिन नहीं हो पा रहा था? नहीं, हिंदू मज़हब से हमारा ज़हन मुतवज्जिह था ही नहीं। था ही नहीं। जी ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से फिर हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, हम लोग पूरी फैमिली ने। किस किस ने किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने, अब्बू ने, मेरी घर वाली ने, पूरी फैमिली ने, मामू ने, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 295 बंदे मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में। आपके इलाके में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हुए। तो सबसे पहले तो हम मुसलमान हुए थे, एक मैं था, एक कज़न था, 2-4 दोस्त थे, तो मुसलमान हो गए थे, मेरी बेगम भी मुसलमान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर 2-4 दोस्त, एक सनामला भाई है सिंध के हमारे रहने वाले, हमारे घर से करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी मेहनत की, एक 2-4 और भी दोस्त हैं उसने भी मेहनत की, पूरे इलाके में दावत देती रही। नहीं, ये जो सनाउल्लाह भाई है जिन्होंने मेहनत की, जी, किस पे मेहनत की? हम पे किया वो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम थे? जी वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मुस्लिम थे। ठीक हो गया, उन्होंने आपको दावत दी? जी उन्होंने दावत दी। इंजीनियर साहब को आप कब से जानते हैं? इंजीनियर साहब को उसने तारफ़ कराया था हमने। अच्छा, वो भाई भी इंजीनियर साहब को जी वो इधर सुनते आया थे? जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा। जी, मिल के गए। आपने जब इंजीनियर साहब को सुना तो आपको क्या बातें अच्छी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बातें अच्छी लगी, क्योंकि सही दीन बताता है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के अल्लाह रसूल से हट के बात करता ही नहीं, अल्लाह के रसूल पे बात होती है, परफेक्ट जो बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, साबी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसने। ठीक हो गया। तो दीन से हट के उधर उधर गया ही नहीं। अच्छा, सब जब आपने इस्लाम कबूल किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त आप अकेले थे? नहीं, मैं तो मेरी बेगम थे। अच्छा, आपकी मियाँ बीवी की, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग थी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, दोनों ने इकट्ठे इस्लाम कबूल किया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रुकावट, कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं कोई चीज़ आपकी नहीं। फैमिली की तरफ से? नहीं फैमिली वाले भी खुश थे, घरों वालों भी तो ठीक हो गया था। हमने उनको तकरीबन, मेरे घर वाले, मैं 2017 में मुसलमान हुआ, तो मेरे घर वाले 2022 में मुसलमान हुए, उन पे मेहनत चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में 2022 में आकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा जी मुझे ये बताएं, आपके ऊपर इस्लाम का किसी ने कोई इस्लाम कबूल करने के लिए कोई प्रेशर, कोई जोर तो नहीं डाला? नहीं किसी ने डाला, खुद बस दिल चाह रहा था कलमा पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कलमा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हो गए। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा पढ़ा, इंजीनियर साहब को सुना, 2014 से लेकर 2026 तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो क्लिप देखी जितनी भी आई अल्हम्दुलिल्लाह। 17 में आपने इस्लाम कबूल किया? जी, जी, आपने और आपकी मिसेज ने? जी ऐसा ही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बंदे थे उस वक्त इस्लाम कबूल किए? जी, आपकी फैमिली के? जी जी मेरी फैमिली के 2 बंदे ठीक हो और गया। भी थे दोस्त, मोहम्मद हनीफ था मेरा चाचे का बेटा था, वो फोत हो गया है, वो भी शामिल था, 2-4 और भी दोस्त उन्होंने भी थे। इस्लाम कबूल किया जी, था? वो फोत हो गया। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। अच्छा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया? जी। अच्छा, ये उस वक्त के दोस्त थे जो आपस में उस वक्त तहकीक में के मैदान में निकले हुए थे, और जी, जी। इस्लाम उस वक्त जब जी, आपने जी। कबूल किया, घर वालों को दावत किसने दी? फिर वो कैसे 5 साल बाद? घर वाले को, मैं अम्मी को, अब्बू को रोज़ रात को बोलता था इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। यानी कि अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है कि भाई मुसलमान ही जो कलमा पढ़ता है वही जन्नत में जाएगा, जो कलमा नहीं पढ़ता वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो क़यामत वाले दिन हदीस में लिखा हुआ था, जिसने एक दुनिया में एक दफ़ा ही पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक बार भी पढ़ा होगा जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। अकीदा सही होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा शरीक किसी को नहीं करना चाहिए। तो कुरान में लिखा मुस्लिमीन मुसलमान, यानी कि मुसलमान बन के रहो, शिरक नहीं करना। जी बाबू के पास तो जाना ही यानी नहीं। 5 साल लग गए आपके पेरेंट्स को, आपके वालिदैन को ये जी। बात समझने में? जी जी अच्छा, अभी तक आपकी वो जो कम्युनिटी है, जी। कितने बंदों को आप लोगों ने दावत दी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ ना, 295 बंदे मुसलमान हो गए हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और इनके पीछे अगर हम डीप करें और देखें कि इनके पीछे कौन था, जी। दावत कहाँ से आई? जी, जी। तो इंजीनियर साहब हैं या इसके पीछे कोई और भी है? नहीं इंजीनियर साहब ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, इंजीनियर साहब जी जो इंजीनियर साहब से हम सुनते थे, वीडियो क्लिप देखते थे, वही कुछ सब कुछ याद करके लोगों को दावत देते थे, फिर दोस्त को बोलते थे, जो करीबी दोस्त थे उन लोगों को दावत दी हम लोगों ने, उसने फिर अपने घर दी, अपने दोस्तों को दी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, आपकी कम्युनिटी में आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ा? बहुत करना पड़ा। हाँ, कुछ बताएं ना, क्या ये लोग क्या कहते थे? ये हमारे क्या हुआ? तो
हमारे गांव में हमें तो जब खाना पीना होता था, एक गैर मुस्लिम सिंध में सिस्टम ऐसा होता है ना, जब एक गैर मुस्लिम है ना उसको साथ नहीं खिलाते, रोटी शोटी या पानी चाय वगैरह साथ बिल्कुल नहीं खिलाते। ठीक है। तो हमें जब मुस्लिम हो गए हम पे इल्ज़ाम डालते थे, भाई ये अकेले मुसलमान हुए हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। यानी ये मुस्लिम कम्युनिटी, हाँ जी, हाँ जी, ये फिर भी कह रही थी कि ये दिल से मुसलमान नहीं हुए। अब आप अलग रह जाओ, आप अपने घर वालों से अलग रहो। तो हमने उसको बताया था कि यानी कि जो सहाबा मुसलमान होते थे, अल्लाह अकबर, वो अपने घर वालों के साथ रहते थे, उनको दावत देते थे। हम अपने घर वालों से जब दूर हो जाएंगे तो इनको दावत कौन देगा? ये जो लोग कह रहे होते थे वो कौन थे? वे मुस्लिम भी थे भाई, नहीं मुसलमान ही थे वो, जो हम आम लोग थे या कोई उलमा थे, आलिम दीन थे, ये क्या इनका स्टेटस क्या होता था? आम मुसलमान ही थे। आम मुसलमान थे जी, जो वो डेरे होंगे या कोई अपना कोई असर सूख वाले होंगे, वो जो कह रहे होंगे कि यार ये नाल क्यों रहता, अलग हो जाए ना। हाँ जी, आनंद अलग रहा हो। ठीक। फिर हम उनको बोलते थे, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, बस परेशान होते बहुत थे। तब सोचते भी थे कि यार हम अकेले मुसलमान हैं, फिर भी सोचते थे मायूस नहीं होना, अल्लाह हमारे साथ है जी। तो फिर बहुत परेशानियाँ पे हमें खाना पीना जो हमारा अलग कर देते थे मुसलमान होने के बाद भी। तो हम यही बस अल्लाह से दुआ मांगते थे, एक दिन आएगा इंशाल्लाह ताला जब सब मुसलमान ही होंगे। अच्छा, इस्लाम आपने कबूल किया 2017 में? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद मोहतरम के ऊपर अभी 2025 में 295 सी भी कट गई। जी जी, तब आप एक नॉन मुस्लिम से इस्लाम में आए, तो आपने देखा इस्लाम वाले का तो ये हाल हो रहा है, तो फिर क्या सोचा? हमने बोला जो उसने काम किया है ना वो तो कर डाला है। हाँ जी, अभी कोई टेंशन नहीं है, मैं सब वीडियो क्लब मौजूद है। हाँ। इसके बहुत स्टूडेंट, एक ही बहुत स्टूडेंट सबको जी। लेकिन आपने ये चीज़ फील की कि आप तो कह रहे थे ना कि आपका तो शिकवा है ना कि ये मुसलमान कहते हैं कि हिंदू ये आप उस फैमिली में रहता है, छोड़ दे। एक मुसलमान के साथ क्या किया मुसलमानों ने? बस ये देख रहे थे, हमने देखा था यूट्यूब पे, बहुत अफसोस हुआ, दुआएं मांगी, अल्लाह ताला उनको रियात फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ी, नमाज़ें में दुआएं मांगी, अल्लाह ताला उनको बाज़त बरी कर दें। तो एक दिन सुना कि इंजीनियर साहब रिहा हो गए हैं, बाज़त बरी हो गए हैं। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग इनकी आई थी, तो हमने सुनी। इसने तो यानी कि ऑडियो में कहा था कि मैंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अंदर करवाया मैं उनको माफ़ करता हूँ। मैं देख लो ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। एक बंदे पे इल्ज़ाम गलत लगाया गया हो, फिर उसको अंदर कराया गया हो। मसलन आम आदमी को हम धक्का मारें वो हमें छोड़ेगा नहीं, हम धक्का मारेंगे उठा के ईंट मारेगा। एक बंदा जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ दीन के लिए कर रहा है, और कुछ नहीं है, सिर्फ दीन है, खाली इस्लाम है। अच्छा, अभी तक 275 लोग जो है हक कबूल कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये अभी भी मिशन जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। वहाँ पे आपको कोई उलमा से मसला तो कोई नहीं? क्योंकि पहले जो डॉक्टर साहब आए थे ना जी जी, हमारे पास, वो भी हिंदू डॉक्टर थे और वो उन्होंने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया, और उन्होंने बताया कि मैंने अपनी विल से किया। जी जी, और अभी तक 572 बंदा जो है ना हमारे पूरे कबीले का इस्लाम ले आया है। लेकिन वो एक गिला कर रहे थे, वो कह रहे थे यार अब ये हो रहा है कि इस्लाम तो कबूल कर लिया, कभी वो वाबी आ जाते हैं, वो कहते हैं हाथ चुक के नमाज पढ़ो, कभी वो आ जाते हैं सुन्नी, वो कहते हैं थले हाथ करके नमाज पढ़ो। इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ तो कोई नहीं? नहीं, हमें डर नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रफ़े दिन नमाज़ पढ़नी है, माशाल्लाह, एतरात रख के पढ़नी, कोई टेंशन नहीं किसी दी। हाँ, हाँ। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको कोई रुकावट भी नहीं है? नहीं, पहले शुरू में तंग करते थे भाई रफ़े दिन ना पढ़ें। हमने बोला हम आपके साथ हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करेंगे, सिवाय रफ़े दिन को छोड़ के। हम रफ़े दिन करेंगे, हम आप नमाज़ें आपके पीछे पढ़ते हैं, जनाजे आप पढ़ते हो, निकाह आप पढ़ते हो, ईद आपके पीछे पढ़ते हैं, तरावियाँ आपके पीछे पढ़ते हैं। मैं रफ़े दिन नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, चाहे जान चली जाए रफ़े दिन नहीं छोड़ेंगे। अभी तक 275 जो बंदे आपने बताया, जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आपकी अपनी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी इस्लाम ले आई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फैमिली और खुश है इस बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हुई? नहीं ज़बरदस्ती कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश है इस बात? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक होगा। आज अपने उस्ताद मोहतरम से भी मिल लिया? नहीं, अभी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, जिनकी वजह से आप दीन इस्लाम में आए, जी, जी। आपका कहना है ना? जी जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज इंशाल्लाह आपके साथ उस्ताद मोहतरम मिलेंगे भी, पिक्चर भी बनवाएंगे। अच्छा लगा भी हमें भी, हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं, आप इस्लाम में आए। और वैसे तो इंसानियत के नाते भी हम आपस में भाई भाई हैं, इस्लाम के नाते से तो और ज़्यादा गहरे भाई हो गए। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत भी दे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू जी सो मच। आए सर, आए सर, आए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंपनी डन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंपनी डन।